So guys, what we will be covering today is Indian Economy 2, and in Indian Economy 2 we are going to cover the first reading. फर्स्ट रीडिंग जो है वो मनोज पांडा प्रोफेसर मनोज पांडा की है, विच टॉक्स अबाउट द ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी from the period of it talks about since independence, but it actually majorly focuses on the current period कि current period में क्या हो रहा है. ठीक है, so this is a chapter from Indian Development Report 2017. But what I have also included is I'm going to include certain sections of the economic survey, the upcoming economic survey 2020-21 का जो सर्वे होगा वो भी डालेंगे, कुछ एडिशनल क्लास नोट्स होंगे. एंड इफ़ यू सी गाइज, इफ़ यू सी दिस पेज, जैसे ये वाला पेज है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द रीडिंग, ये मैंने एक इंडियन पब्लिक पॉलिसी रिपोर्ट है उधर से निकाला है बाय प्रोफेसर गोविंद राव एंड शंकराचार्य, प्रोफेसर शंकराचार्य का आर्टिकल है. I'll tell you the name of the article just in case you want to read about it. Just a second, I'm on my other PC as well. My internet क्यों नहीं आ रहा? Hold on a second guys. I've sent you the link on your group. So that's the article which talks about the current economic growth की current economic growth क्या है. एंड ये प्रोफेसर रंगराजन का है और श्रीवास्तव, डी.के. श्रीवास्तव का है. प्रोफेसर रंगराजन, you might know that he was a former governor of RBI as well as chairman of Prime Minister's Economic Advisory Council. And then the other professor is basically one of the directors of Madras School of Economics. तो एम्पेरिकल काम जो है वो काफ़ी मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काफ़ी एम्पेरिकल काम होता है और IGIDR में बहुत एम्पेरिकल काम होता है. सो प्रोफेसर पांडा आई थिंक राइट नाउ इज एट IGIDR एंड आई थिंक उससे पहले शायद से या आजकल शायद से IEG में है. तो this is what we are going to cover. But if you see the reading, so I have included a couple of sections from D.K. Srivastav and C. Rangarajan's article in Indian Public Policy Report. तो इसमें करंट डेटा दे रखा है. इफ़ यू सी द डेटा ऑफ योर बुक, इट गोज टू ओनली 15-16, बट 15-16 के बाद बहुत कुछ चेंजेस आए हैं इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अंदर. ऑल ऑफ दोज हैव बीन इंक्लूडेड, एज वेल एज जो सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट है वो चेंज हो गया है. Then in tomorrow's class we will talk about agriculture, or in the next class we will talk about agriculture, industry and service. So हम 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लेंगे, बट वी नीड टू टेक इन 2021 का भी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जो करंट ईयर है उसके अंदर हमारा GDP कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, बट एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है, इंडस्ट्री और सर्विसेज में काफ़ी हुआ है. सो वी नीड टू सी ऑल ऑफ दैट एज वेल. So my intention to include recent data is so that you can update your readings. आपकी रीडिंग जो है ये पुरानी रीडिंग चल रही है. A much more updated reading has already been included in GE 442, which is general your generic elective, जो बाकी सारे कोर्सेज करते हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, उसमें नई रीडिंग आ गई है, बट आपके वाले में पुरानी रीडिंग चल रही है. But I didn't want you to go through old, just the old stuff. So इसलिए I've included all of this. Now to start off with the macroeconomic scenario and policy options, we need to go and revise certain basics जो हमने पहले भी किया था in Indian economy last semester. And what are these basics that we need to see? Let me talk about those basics. We talk about there's something called ICOR, incremental capital output rate. OR is change in capital upon change in output. Change in capital is your investment, and change in output is basically your GDP growth rate. This is your investment rate. This is your 4. So all you need to do is अगर आपको GDP growth rate निकालना है तो investment rate जो भी होगा divided by 4 will give you your GDP growth rate. So major objective of the Indian economy is कि हम investment कैसे increase कर पाएं. But इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का एक अपना इक्विलिब्रियम होता है. सो यू नीड टू सी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप है.
ठीक है, यूजुअली आप इन्वेस्ट ज़्यादा करते हो, आप सेव कम करते हो, सो दैट इज़ बेसिकली योर बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड. सो यू हैव टू सी योर लीकेजेस एंड योर इंजेक्शंस. द लीकेजेस टाइप्स क्या क्या हैं? सेविंग्स एक लीकेज है, इम्पोर्ट एक लीकेज है, एंड टैक्सेशन एक लीकेज है, एंड इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है, एक्सपोर्ट इंजेक्शन है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन है. सो all you need to do is rearrange this, and if you rearrange this you will get I minus S is equal to M minus X plus T minus G. So all you are saying is that if you want to invest more than save, that means you are dissaving. If you want to dissave, you want to invest more and save less, then that has to be fulfilled only through two routes. एक है कि आप टैक्स ज़्यादा करो, योर टैक्सेशन शुड बी मोर देन योर इनकम. दैट मीन्स गवर्नमेंट या तो पॉजिटिव रहे, ठीक है, या फिर अगर ये भी नेगेटिव है तो फिर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आ जाएगा, दैट फॉरेन बोरोइंग्स क्या हैं आपकी, एक्सटर्नल सोर्सेस. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि ये आपका इक्विलिब्रियम कैसे आप मेंटेन करोगे. नाउ द इशू इज दैट आप कैपिटल फ्लोज पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दे सकते हो. यू हैव टू रेज योर ओन डोमेस्टिक रिसोर्सेज. तो आप S माइनस आई माइनस एस का जो गैप है, आप ट्रेडिशनली डोमेस्टिक सोर्सेज से उसको फंड करना चाहते हो रादर देन मोर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज से. सो दिस इज द बैकग्राउंड इन विच वी स्टार्ट our session. And we go about this analyzing the growth rates. हम growth rate देखते हैं कि growth rate क्या है. and अगर आप growth rate देखो इंडिया का, if you see in the initial period, इस period को हम क्या बोलते हैं guys? What do we call this period as? Guys, you have done this. इस period Nehruvian, sir. Nehruvian era. No, it was till 65 only. नेहरूवियन एरा. नेहरू ने और 15 साल कैसे जी लिया भाई? No, sir, वो 65 तक ही था. हाँ, तो मैं तो 80 तक बनाया. वाह प्रियंका यादव, वाह. No, sir, गोल्डन एज. 2003 to 8 वाला था. गोल्डन एज, बहुत बढ़िया. अगर ये गोल्डन एज है तो हम तो प्लेटिनम एज में जी रहे हैं फिर तो. बहुत बढ़िया, पूरी कांग्रेसवादी हो तुम. गोल्डन एज. चलो और बताओ गाइस, क्या था ये पीरियड? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. एग्जैक्टली, यस अनन्या. This period was called as Hindu rate of growth. ठीक है. Then this was the period guys. इस period में क्या हुआ था? Can someone remember? इस period में क्या हुआ था? मैंने पढ़ाया हुआ है, रीडिंग थी इसके ऊपर. पीस मील रिफॉर्म्स. एग्जैक्टली, सिर्फ एक ही लड़की को आता है सब कुछ. इसके अंदर राजीव गांधी एंड इनिशियली इंदिरा गांधी ने जो रिफॉर्म्स करे थे, एडहॉक रिफॉर्म्स, पीस मील रिफॉर्म्स, प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स, अरविंद सुब्रमण्यम की जो रीडिंग थी जो लास्ट सेमेस्टर हमने पढ़ी थी. ठीक है. बट ये जो रिफॉर्म्स थे सस्टेनेबल नहीं थे, क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था. आप इन्वेस्ट तो करे जा रहे थे बट आपके कंट्री में इतनी सेविंग जनरेट नहीं हो रही थी. उसकी वजह से यहाँ पर आपका आया क्राइसिस, और फिर आपने किए यहाँ से नए रिफॉर्म्स शुरू. और ये नए रिफॉर्म्स जो हैं ये लेट 1999 तक तो थोड़ा बहुत रिकवरी हुई. ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी हो रही है. ये आपका क्राइसिस का पीरियड है. ये जो पीरियड है इसके अंदर आपको ग्रोथ दिख रही है. देखो ये ग्रोथ आपकी दिख रही है. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, एक टर्म हमने यूज़ किया था जिसमें हमने बोला था फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन. याद आ रहा है किसी को? एनीवन रिमेंबर्स फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन इन 80s? कि 80s की Yes, sir. क्या Yes, था? sir. क्या था अदिति? So, sir, actually, 1986 के बाद एक्चुअली ग्रोथ एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुई थी. बट हम जब उसको एग्रीगेट करते हैं, हम पूरे में बोल देते हैं दैट ओके द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई पेस. बट वो सिर्फ लास्ट के 3-4 साल में ही हुआ था. एग्जैक्टली. जब हम ये फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन है कि लास्ट के 3-4 साल में ग्रोथ हुई है, बट ओवरऑल हमने कहा कि इस पीरियड के अंदर ग्रोथ जो है वो 5% की हुई है. ठीक है. सो दिस वाज द फैलेसी ऑफ एग्रीगेशन दैट वी हैड डिस्कस्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला पीरियड का ग्रोथ रेट इन एनी केस इफ यू सी इज मच मोर देन द प्रीवियस एरा जो आपका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है.
और ये वाले पीरियड के अंदर हमने काफ़ी ग्रोथ जो थी काफ़ी नॉमिनल थी। ये वाला जो पीरियड था दिस वाज द नेहरूवियन एरा। तो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर डिस्टिंक्ट रीजन्स। नेहरूवियन एरा, इंदिरा गांधीज एरा, देन द इनिशियल बर्स्ट इन रिफॉर्म्स, देन यू फॉल, फिर उसके बाद आपने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करने के बाद देर इज अनदर डिक्लाइन दैट यू विल प्रॉब्ली सी, क्योंकि ये 5 ईयर मूविंग एवरेज आपको वो डिक्लाइन नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली में डिक्लाइन आया था लेट इन योर लेट 90s एंड अर्ली 2000s। बट उसके बाद अच्छा ये डिक्लाइन, ये देखो ये डिक्लाइन आपका आ गया टिल 2004-5। ये देखो ये जो लेट 90s का डिक्लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये लेट 90s एंड अर्ली 2000 का डिक्लाइन आया। और उसके बाद और इसी पीरियड के अंदर यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट गिर गई थी 2004 में, और यहाँ से यूपीए शुरू होता है, मनमोहन सिंह की पहली गवर्नमेंट, ठीक है। और वो इंक्रीज करता हुआ जाता है टिल 2012। बीच में एक माइनर ब्लिप आता है। ये माइनर ब्लिप क्या है गाइस, कैन समवन टेल ये ब्लिप क्या है? यस एग्जैक्टली, दिस इज यूएस सबप्राइम क्राइसिस और द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का फॉल आता है, फिर उसके बाद वापस ये जो डिप आता है उससे हम रिकवरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डेटा शोज अस। बट इफ यू सी द डेटा, अब द प्रॉब्लम गाइज इज कि ये वाला जो डेटा है ना, ये वाले डेटा पे अभी कंसेंसस नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो डेटा आपको दिखा रहा है ये 2004-2005 के प्राइसेस हैं, बेस प्राइस पे है। बट इफ़ यू सी उसके बाद आपका जो जीडीपी का कैलकुलेशन का जो तरीका है दैट शिफ्टेड टू 2011-12 का प्राइसेस, एंड दिस इज डीके श्रीवास्तव्स आर्टिकल एंड प्रोफेसर सी रंगराजन, ठीक है। तो उसके अंदर इफ़ यू सी कि ये फॉल जो होता है ये आता है, बट इट सेज कि 2014 के बाद से वापस इंक्रीज, 2013 के बाद से वापस इंक्रीज होना शुरू होता है टिल 2016। ये वापस आपकी इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है इस पीरियड के अंदर। ऑल्दो दिस इज वेरी डिबेटेबल, क्योंकि आपका जो तरीका था कैलकुलेशन का वो बहुत डिफरेंट था, ठीक है, फ्रॉम द अर्लियर मेथड। इफ यू रिमेंबर हमने कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज में एक अरविंद सुब्रमण्यम का आर्टिकल पढ़ा था, ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। यस सर। याद है पिछले साल पढ़ा था जब हमारा कोरोना नया आया था, तब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ये आर्टिकल अरविंद सुब्रमण्यम। आई विल सेंड यू दैट आर्टिकल अगेन, ठीक है। सो दैट आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट हाउ इंडिया इज probably ओवर एस्टिमेटिंग इट्स जीडीपी। तो ये आपको यहाँ पर आपको डाइवर्जन दिख जाएगा कि जो डेटा आपके पास पहले दे रखा है और जो डेटा अब आ रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बट what you see is that irrespective of what kind of GDP figures that you take, up 2004 के prices ले लो, उससे पहले 2007-8 के ले लो, या 2004 का ले लो, या 1999 के उससे पहले प्राइसेस होते थे, चाहे आप वो ले लो, without any confusion you can say that your GDP is falling after 2016 or 2020-21 का you can note it down, this will be somewhere around -8%, -8 to -10% का होगा, ठीक है। तो you can add this as a provisional figure। तो ये आपकी, और ये RBI की फिगर है गाइस। तो ये आपका जीडीपी का आपका ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, एंड वी कैन सी ये तो आप कह सकते हो कोरोना की वजह से है, बट व्हाट अबाउट द फॉल इन दिस पीरियड? ये तो कोरोना की वजह से नहीं था, तो देयर वर सर्टन रिफॉर्म्स जो यहाँ पर नहीं हुए। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का इम्पैक्ट आया, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट आया, देन यू हैड द इम्पैक्ट ऑफ स्लो डाउन इन कंजम्पशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, कि कंजम्पशन स्लो डाउन होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस सब की वजह से इंडिया का जो इंजन है, जो ग्रोथ इंजन है, वो स्टॉल करना शुरू ऑलरेडी हो चुका था। देन यू हैड द एनबीएफसी क्राइसिस इन दिस पीरियड, यहाँ पर एनबीएफसी का क्राइसिस आ गया था, ठीक है। बैंक्स ऑलरेडी लोन नहीं दे रहे थे, अब एनबीएफसीज भी लोन नहीं दे रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज बहुत कम बच गए थे, और कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा था। रूरल एरिया में कंजम्पशन स्लो डाउन आ गया है। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट डिमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी इश्यूज थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था, उसकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सबसे बड़ा हिट लगा था, और हमारे इंडिया के अंदर 80% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही काम करता है। सो उसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी का जो ट्रेंड है दैट इज ऑन अ वेरी स्टीप डिक्लाइन, ठीक है। सो
देयर माइट बी अ लिटिल डिफरेंस कि ये 2013 के बाद ये अपटिक आया है कि नहीं आया. यहाँ पर ये अपटिक कह रहा है, नए डेटा के हिसाब से होगा ये अपटिक हो जाएगा, बट पुराना डेटा जो है अगर 2004 का लोगे तो 4 के प्राइसेस लोगे तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है. बट व्हाट यू सी इज पोस्ट 2016 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप यहाँ से लो कि यहाँ से लो, देयर इज अ वेरी स्टीप फॉल कि अब 2019 में ये नेगेटिव है. समझ में आया गाइस? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स है? So what I want you to do is when you write your answers, please update. तो ये जो data trends है ये तो आप लिख ही सकते हो, but इसके साथ में you write a small update in your answers that GDP का जो growth है, GDP का growth 2011-12 के हिसाब से, 11-12 prices के हिसाब से what is the trend. 2016 तक increase किया, 2013 से 16 increase किया, and 16 onwards there is a secular fall है. ठीक है. एंड राइट डाउन दीज फिगर्स. ये फिगर्स इफ यू कैन रिमेंबर कि इसमें एक एवरेज ले लो, और इसका तो देख ये तो 3 4 7 6 4 एंड -8 ये यू कैन रिमेंबर. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो शोन इन दिस, दैट यू कैन शो इन दिस डायग्राम एज वेल कि ये देखो ये यहाँ पर अपटर्न दिखा रहा है, 2013 के बाद ही यहाँ अपटर्न दिखा रहा है. ठीक है. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये फॉल कर रहा है, और ये अभी यहाँ पर है, ये नेक्स्ट ईयर के अंदर ये -8 है, और अब ये इंक्रीज करेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज वी शेप्ड रिकवरी. जो न्यूज़पेपर्स में यू प्रॉब्ली मस्ट हैव रेड ऑन. एनी डाउट्स गाइस? समझ में आया व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी एंड व्हाट इज द डेटा ट्रेंड गाइस? हाँ कि ना? अरे सो रहे हो क्या? चलो ठीक है. सो दिस इज what we are talking about. GDP growth rate वो शुरू में बता रहा है कि it was 4% in the initial few years, which is the Hindu rate of growth. Then it increased to 5% in the second half of the 80s, aggressive fiscal policies की वजह से. But that broke down in 1991 because of the crisis. Then the Manmohan Singh and PV Narasimha government finally reduced the tariffs and opened up our economy, which is nothing but the LPG policies. और उसके बाद 1990s में हमारी ग्रोथ रेट 5 to 7% होती है, फिर गिर जाती है इन लेट 90s, एंड ओनली टू इंक्रीज इन द गोल्डन फेज. ये जो गोल्डन फेज है ये है, याद रखो गोल्डन फेज. प्रियंका, गोल्डन फेज इज 2003 to 2010. वैसे 2008 बोलते हैं, बट 2010 तक आप ले लो. बीच में एक ब्लिप आता है 2008-2009 में, जब आपका ग्रोथ रेट 6.7% हो जाता है. जो इंक्रीज बाद में होता है वो मुखर्जी स्टिमुलस की वजह से होता है. आई एक्सप्लेन यू व्हाट मुखर्जी स्टिमुलस वाज इन द ईयर 2008-2009. Pranab Mukherjee was the finance minister and he gave a huge stimulus in terms of a very expansionary fiscal policy, जिसकी वजह से हम रिवाइव कर जाते हैं. बट डबल डिप रिसेशन आता है 2011 में, उसके हमने रीजंस देखे थे, एक्सटर्नल रीजंस थे, इंटरनल रीजंस थे, एंड उसकी वजह से एक सेक्युलर फॉल आता है. इंडियन इकोनॉमी सो ह्यूज फॉल आफ्टर दैट, एंड उसके बाद से वी हैव नॉट बीन एबल टू रिस्टोर द ग्रोथ दैट वी हैड अचीव्ड अर्लियर. सो दिस इज, एंड अब हम कहते हैं कि हमारा 7 to 8% इज द एवरेज ग्रोथ रेट थ्रू विच at which we can grow. So this is the broad trend. We will talk about agriculture, industry and service sector at a later stage when I include that data set as well. But before that I want to cover savings and investment, क्योंकि सीधा GDP से savings and investment पढ़ोगे तो that will be a better explanation of things. And इसमें मैंने क्या किया, ये आपका डेटा savings and investment का दे रखा है, but after savings and investment if you see, चल नहीं रहा कुछ. Yeah. So if you see the savings and investment, तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये these two figures of savings and investment rate. I've included again from Professor Rangarajan and D.K. Srivastava's paper. ठीक है. This is because ये 18-19 तक का saving investment rate है, और जो आपकी readings के अंदर जो saving investment rate दे रखा है वो 2014-15 का दे रखा है. ठीक है. We wanted to include the latest figures. So you can always note down, you can always tell that after this we have taken new figures from this particular paper. And again, this is going to add value to your answers, because probably no one other than you who's basically not watching this video is not going to update the readings. So यहाँ पर again you get those brownie points. So let's talk about savings first. ठीक है. savings के बारे में सबसे पहले बात करते हैं.
आई टोल्ड यू गाइज इन द प्रीवियस सेशन, सेविंग्स कौन कौन करता है, याद है पिछली रीडिंग से? हाउसहोल्ड्स, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट. exactly. So if we talk about savings basically gross domestic savings के तीन आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे मार्केट में. कौन कौन से तीन पार्टिसिपेंट्स होंगे? एक होगा हाउस होल्ड्स, सबसे ज़्यादा सेव कौन करता होगा गाइज? कॉर्पोरेट. एंड द थर्ड इज योर पब्लिक, इज बेसिकली गवर्नमेंट. ठीक है, इसको हम प्राइवेट भी बोलते हैं. इन दोनों को हम ऐड करके हम इनको प्राइवेट सेविंग्स भी बोलते हैं कई बार. सो दिस इज द वे यू पुट इट आउट. हाउसहोल्ड्स आर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेवर्स. ठीक है, तो सेविंग टू इन्वेस्टमेंट का जो लिंक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेवर्स जो है हाउस होल्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो कॉर्पोरेट्स होंगे. ठीक है, सो एंड हाउस होल्ड्स फर्दर सेव इन टू पार्ट्स. दे सेव इन टू पार्ट्स. दे सेव इधर इन फिजिकल एसेट्स और दे सेव इन फाइनेंशियल एसेट्स. तो जब भी आपका इन्फ्लेशन होगा, for example, if you see 2009 to 2013 very high inflation, if you see the current year inflation is somewhere around 7% now, 6.5-7% के around चल रहा है. तो whenever you see very high inflation, people will shift their portfolio because बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट इतना नहीं दे पाएगा. 7% आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, 8% का मैक्सिमम 7.5 या 8% का आपका एफडी का रेट है, तो आप ईयर ऑन ईयर तो कुछ कमा ही नहीं रहे हो. ठीक है, 0.5% कमा रहे हो. तो बिकॉज ऑफ दिस आप लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट से शिफ्ट कर देते होते हैं फिजिकल एसेट की तरफ. सो यू नीड टू हैव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको मिनिमम एक रिटर्न भी दे पाए. सो फिजिकल एसेट्स और ये पोर्टफोलियो जो है ये कई बार चेंज होता है. लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड इन द इंडियन इकोनॉमी. If you see from 2000 onwards तो इंक्रीज हुआ, बट हम उससे पहले की यहाँ पर डेटा नहीं दे रखा. बट इफ़ यू सी 1950s के अराउंड जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारा जो सेविंग्स रेट था वो 9 to 10% था इन अर्ली 50s. वेरी पुअर इन्वेस्टमेंट रेट, वेरी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ अ वेरी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री. देन मिड ऑफ 70s तक आते आते ये 20% हो गया. एंड बेसिकली अराउंड 20% के अराउंड हो गया. एंड टिल द पॉइंट इन 2000 ये अराउंड 25% पहुंच गया. सो बहुत स्लो इंक्रीज हुआ है. जो बीच में जो इंक्रीज हुआ है उसका एक मेजर रीजन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था 1969 के अंदर एंड 1980 के अंदर. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की वजह से काफ़ी सेविंग्स रेट इंक्रीज हुआ था. नाउ पीपल न्यू कि अच्छा ये बैंक जो है तो सरकारी बैंक है तो हमारा पैसा सेफ है. सो बिकॉज ऑफ दिस सेविंग्स रेट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ अराउंड 25%. बट उसके बाद एकदम से इंक्रीज आता है सेविंग्स रेट के अंदर. क्यों? क्योंकि लोगों के पास एक तो इनकम ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के पास पे कमीशंस की सैलरीज एकदम से बढ़ जाती है. देन अपार्ट फ्रॉम द पे कमीशन the overall investment portfolio, a lot of people started investing in saving and then investing in real estate, and apart from that गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोगों ने काफ़ी करी, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी करी. तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने पहले सेव करोगे फिर इन्वेस्ट करोगे. so that is the kind of portfolio they started generating. तो if you see the peak at the peak of it, ओवरऑल कंट्री का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो कॉर्पोरेट्स इस टाइम पे कॉर्पोरेट्स भी बहुत ज़्यादा सेव कर रहे थे. सेव कैसे कर रहे थे? बिकॉज दे वर अर्निंग अ लॉट, दे वर कीपिंग अ लॉट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स. तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स इज नथिंग बट सेविंग्स. तो यू हैव टू रिलेट इट टू अर्निंग एज वेल, कि अगर आप अर्न ज़्यादा कर रहे होगे तो आप सेव ज़्यादा कर रहे होगे. ठीक है. सो ओवरऑल योर सेविंग रेट्स पीक एट 2007-2008 टू समवेयर अराउंड 37%. और जो बेसिकली ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर भी है, वी हैड वेरी हाई लेवल ऑफ सेविंग्स. But after this started dropping to around 32% in 2008-2009 due to the global crisis. Then again it increased to around 34%. But if you see after 2014-15 it has started falling, and ये अब जाके if you see the figure यहाँ पर देखो ये 38 सेविंग्स, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, ये देखो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है 2007-2008 में 37%. एंड यहाँ से फिर उसके बाद फॉल करना शुरू करता है
32%, फिर वापस इंक्रीज करेगा तो समवेयर अराउंड 33% के एवरेज के अराउंड वापस इंक्रीज हो जाता है। बट आफ्टर दिस ये 33% के अराउंड ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रहती है, बट आफ्टर दिस सी देर इज अ फॉल बाय द टाइम ऑफ 2018-19 दिस इज समवेयर अराउंड 30%। आपकी सेविंग्स जो है वो 33% जो चल रही थी 2014-15 के अराउंड, वो इसको यू कैन राइट दिस एज 33%, ठीक है। तो ये जो है ये फॉल होके 30% आ गई है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फिगर कि 30% हो गई, एंड यू कैन प्रॉब्ली कोट की प्रीवियस हमारे पास जो फिगर है वो क्या है। So this is how this has been allocated. But if you see the cross allocation between the sectors, अब हम between the sectors अगर रीड करने की कोशिश करें तो हमने कहा था कि हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है एंड पब्लिक सेक्टर है। तो पहले सबसे मेजर फॉल कहाँ आया है? सबसे मेजर फॉल आपका पब्लिक सेक्टर में आया है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ने खूब सेविंग करी हुई थी बिकॉज आप FRBM को मीट कर रहे थे। उसके बाद से बिकॉज मुखर्जी स्टिमुलस ने क्या किया, मुखर्जी स्टिमुलस ने कहा कि आप खर्चे ज़्यादा करो एंड रिड्यूस योर इनकम, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस सेविंग, और डिस सेविंग्स की वजह से गवर्नमेंट की इस पीरियड के अंदर सेविंग्स जो है वो कम होनी शुरू हो गई। एंड इफ यू सी अक्रॉस दिस गवर्नमेंट की जो डिस सेविंग है वो कंसिस्टेंट है और कभी भी वो 5% के अराउंड नहीं पहुंच पाई है, ठीक है, जो आपके गोल्डन फेज के एंड में था। लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट सेविंग थोड़ी सी बेटर नजर आएंगी कि कॉर्पोरेट सेविंग्स जो थी यहाँ पर 9.4% थी, ठीक है ना, अराउंड 10% थी। फिर वो फॉल करी, कंसिस्टेंटली फॉल करनी शुरू हुई टिल 2011-12, फिर थोड़ी सी इंक्रीज होके वापस अराउंड 12% तक आती है। एंड इफ यू सी 2014-15, ठीक है, अराउंड 12% के अराउंड तक चली जाती है ये, बट उसके बाद से ये वापस फॉल करनी शुरू हो गई है, ठीक है। एंड अगेन इट हैज कम टू अराउंड 9%। तो इट मूव फ्रॉम 9% टू समवेयर अराउंड 12% इन द मिड एंड देन बैक टू 9%। तो दिस अगेन शोज कि इन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सेव ज्यादा नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट सेक्टर सेव क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है उसकी वजह से, और ये जो NBFC के क्राइसिस हैं, बैंक्स लोन नहीं दे रहे, तो यहाँ पर क्योंकि कॉर्पोरेट्स के पास इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज बहुत कम बच गए होंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही इसलिए वो सेव नहीं कर, पैसा नहीं कमा पा रही, और पैसा नहीं कमा पा रही तो इसलिए वो सेव नहीं कर पा रही। सो दिस इज अगेन एन इशू कि कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कम हो गई हमारे पिछले 5 साल में। अगेन एन एनालिसिस विच इज नॉट गिवन इन योर रीडिंग बट यू नीड टू नो। Then if you see what has happened in the household sector, what has happened in the household sector was somewhere around 22% and it is the only sector जो consistently increase करता हुआ गया, ठीक है। household started shifting their portfolio, एकदम से देखो यहाँ पर portfolio they have shifted to physical asset। ये क्या हुआ होगा guys 2008-9 में? Can someone tell me क्या हुआ होगा? I'll give you a hint. This kind of trend will be also be visible in 2020-21. Move from financial to physical. Can someone tell me कि क्यों मूव हो रहा होगा? अभी भी मूव हो रहा होगा और 2008-9 में भी मूव हो रहा होगा, हुआ है। Price of gold. No, not decreased. प्राइस ऑफ गोल्ड की इंक्रीज हो रही होगी, इसलिए लोगों ने गोल्ड खरीदा। जब भी गाइस क्राइसिस आता है ना, कहीं भी इकोनॉमी में कुछ भी क्राइसिस होगा, यू विल ऑलवेज फाइंड कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। गोल्ड इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कैसा भी क्राइसिस, अभी कोविड का क्राइसिस आया तब भी आप गोल्ड देख लो कितना इंक्रीज हुआ। सो यू विल ऑलवेज सी जब भी इकोनॉमिक कोई भी टर्बुलेंस होगा, देयर इज वन एसेट दैट पीपल फॉल टू व्हिच इज गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज बुलियन एंड बेसिकली इट्स अ सेफ हेवन, ठीक है। तो दैट्स द काइंड ऑफ फिलोसफी विद पीपल गो, और इसीलिए आपको गोल्ड के प्राइसेस इस टाइम पे भी बढ़े होंगे और इसीलिए लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया खूब सारा, एंड आज के टाइम पे भी यही चीज हुई होगी। व्हाई डू यू थिंक कमोडिटीज लाइक बिटकॉइंस आर डूइंग सो वेल? ठीक है, एक्सेस पैसा मार्केट में खूब आया हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो है, लोगों के पास लिक्विडिटी है, लोग बिल्कुल धमाधम लोग इन्वेस्ट करे जा रहे हैं अपनी स्पेकुलेशन में ऑन बिटकॉइंस, एंड दैट इज व्हाई यू सी बिटकॉइन का और ये क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस जो एवरेज प्राइसेस हैं कितने ज़्यादा हाई सोर कर रहे हैं।
ठीक है. So this is one of the reasons, and people started replacing their portfolios, and over the years यहाँ तक 2009 2010 तक इंक्रीज हुआ. फिर उसके बाद यू सी कि ये फॉल होना शुरू हो गया. 2009 2010 में ये 25% था, एंड उसके बाद ये फॉल कर रहा है, एंड दैट यू कैन सी हेयर एज वेल. हाउस होल्ड सेक्टर ये देखो, ये कंसिस्टेंटली फॉल कर रहा है, और आज की डेट में ये 19% के अराउंड है, विच इज़ द वेरी जो आपका 2000 लेवल से 2000 के लेवल से भी कम है. तो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड 2014 में जो था वही इस वक्त चल रहा है. तो ये देखो, ये 19, यहाँ पर भी 19 ही है. तो आपका बहुत ही ब्रॉड बेस्ड फॉल है. ठीक है, ब्रॉड बेस्ड कैसे है कि आपकी हाउस होल्ड का आपका फॉल कर रहा है. ठीक है, और हाउस होल्ड में भी आपने इसको तो आपने मेंटेन करा हुआ है 7% के अराउंड ही, आपका ये भी फॉल करना शुरू हो गया. ठीक है, और इन कॉर्पोरेट्स आप 9 से आपका 12% गया, एंड वापस ये 9% के अराउंड है. एंड जो आपका पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर 5% से समवेयर अराउंड 1.5% है. सो 5% से 1% के अराउंड आ गया है, ये 9% पे ही स्टक है, और ये 19% के अराउंड है. सो दिस इज द रीजन वाई you have your overall gross domestic savings as to be somewhere around 30%, 29-30%. ठीक है, and this is what is being explained here. यही सारा चीज़ें हैं. ये देखो, household savings, the largest component of the savings, started recovering but dropped subsequently from 25% to 19%. Household financial savings had fallen by 3 to 4%, while physical सेविंग्स बाय द हाउस होल्ड रिकॉर्डेड एन इंक्रीज. क्योंकि हाई इन्फ्लेशन होगा तो पीपल विल गेट नेगेटिव रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल सेविंग्स, एंड दे विल एलोकेट लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ their सेविंग्स टू नॉट प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड. ठीक है, दिस वाज द अदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू ड्रॉ. कोई डाउट गाइज? एनी डाउट? लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट देन. तो हमने यहाँ पर क्या देखा? लेट्स समराइज दिस. हमने देखा कि फिजिकल एसेट्स जो हैं वो 2014 तक तो इंक्रीज करे. हाउस होल्ड जो है ओवरऑल, पहले हाउस होल्ड देखते हैं. हाउस होल्ड जो था वो मैक्सिमम 25% पे पहुंचा था. 22% पे था 2007 में, 25% तक पहुंचा, एंड देन नाउ इट हैज़ फॉलन बैक टू 19% इन 2018. ठीक है, कॉर्पोरेट जो था, कॉर्पोरेट 7% पे था, ये मैक्सिमम इंक्रीज होके 9% पे आया. 9 से 12, 9 ही था. सो दिस वाज एट 9% इन 2008, 2007 2008. देन ये 9% तक इंक्रीज, देन ये 12% तक इंक्रीज हुआ, एंड 12% से ये वापस 9% पे हो गया इन 2018. पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर वॉज 5% इन 2007 एंड रिड्यूस डाउन टू 1.5% इन 2000. तो इसके अंदर एक सेक्युलर फॉल आया. इसके अंदर डिक्रीज से इंक्रीज हुआ, फिर वापस फॉल आ गया. और विद इन दिस आपका 2014 तक फिजिकल एसेट्स जो है ये इंक्रीज करे थे, एंड फिजिकल एसेट्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एंड फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो अब कंसिस्टेंटली अराउंड ये फॉल करा 2014 तक, एंड उसका कंसिस्टेंटली 7% पे है, बट अब ये भी गिर गया है काफ़ी ज़्यादा, एंड ओवरऑल अब ये 19% पे है. दिस इज फॉलन टू समवेयर अराउंड 11% now. 11 to 12%. So this is the overall picture that you need to remember, and just draw a small kind of a chart, data chart to represent it. Let's talk about investment, gross capital formation. Now this gross capital formation is divided under 3 heads again. One is your households, then will come your corporate and your public sector. इनके बारे में बात करेंगे कि हाउ, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स गाइस, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट था शुरू में वो बहुत कम था. ठीक है, बट वो भी इंक्रीज करना शुरू किया विद टाइम. एंड इफ़ वी सी द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट्स, यहाँ देखो हमारा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो था वो समवेयर अराउंड 25% था इन 2000, और इंक्रीज करके अपने पीक पे आ गया 2007-2008 में. ये आपका पीक है 38%. उसके बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग
ठीक है, इट स्टार्ट्स फॉलिंग, फिर वापस इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होते हुए वापस इट शोज कि 39% पे पहुंच जाता है, बट एक्चुअली में ये एक्सटर्नली फाइनेंस्ड काफ़ी रहता है. सो इफ़ यू सी दिस फिगर, ये 39% के अराउंड पहुंच गया है, बट सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सेविंग्स आप इतनी नहीं कर रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 2011-12 में 39% है, सेविंग्स आपकी 34% है. तो ये जो गैप है ये 5% का हो जाता है. तो ये 5% गाइस कहाँ से आएगा? ये 5% कहाँ से आ रहा होगा? आप इन्वेस्ट 39% कर रहे हो, आप सेव 33-34% कर रहे हो, ये बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? फॉरेन बोरोइंग्स बेसिकली, फॉरेन बोरोइंग्स या कैपिटल फ्लोज और टू से, तो ये बाहर से पैसा आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज आल्सो रिटन हियर. The series on gross capital formation stayed above the domestic savings by 1 to 2% points, the difference being financed by foreign savings or net capital flows. ठीक है, the gross capital formation exceeded domestic savings by 4 to 5%, जो अभी हम देख रहे हैं 4 to 5% का गैप आ जाता है, जहाँ पर आपकी सेविंग्स रेट 33% के अराउंड है और आपका इन्वेस्टमेंट रेट 38% के अराउंड एवरेज चल रहा है. तो ये जो 4 to 5% है, इंडिकेटिंग अ कैपिटल फ्लो ड्रिवन इन्वेस्टमेंट रिकवरी. ठीक है, ये कैपिटल फ्लोज जो हैं, डोमेस्टिक बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई है, उससे हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है वो. ठीक है, सो एंड दिस रिकवरी डिड नॉट लास्ट एंड द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो डिक्लाइन कर गई अगेन बाय 3 to 4 परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन 2012-2014. तो आपको यहाँ तक इंक्रीज दिखना शुरू हुआ और फिर देखो ये 34% पे पहुँच गई है. सो एंड इफ यू सी ये 11 में राइज 39% पे करी. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि ये 39% पे है ये 11-12 एंड 12-13, और उसके बाद से ये फॉल कर रही है एंड सी नाउ इट हैज रीच टू समवेयर अराउंड 32%. ये एक मेजर इशू है. इसमें एक मेजर जो कॉमन थिंग है, अगर आप देखो तो हमारा पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंटली बहुत हाई है. पब्लिक सेक्टर पैसा डाले जा रहा है इकोनॉमी में, ये पब्लिक सेक्टर बूस्ट करे जा रहा है किसी ना किसी तरीके से. 7 to 8% की एवरेज उसने निकाली हुई है. तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे जा रहा है, बट इट इज़ द प्रॉब्लम इज कि प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पा रही है. प्राइवेट सेक्टर इज डिक्लाइनिंग. तो ये जो है ये डिक्लाइन आपको यहाँ पर 23% के अराउंड आपको दिख रहा होगा. बट इफ़ यू सी यहाँ पर डिक्लाइन, प्राइवेट कॉर्पोरेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 13% से 11% हो गई है, एंड हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है समवेयर अराउंड 15% से 11% हो गई है. तो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ट्राइंग टू सेव द फेस, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का इंजन है वो चलता रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहे, बट ओवरऑल योर इन्वेस्टमेंट इज फॉलिंग, और वो सेक्युलर फॉल. और ये इंडिया का सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं वो बहुत तेज फॉल कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग रिटन हियर. ठीक है, दैट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को कंट्रीब्यूट करना है. एंड वन ऑफ द रीजंस कि वाई कॉर्पोरेट सेक्टर हैज स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इज बिकॉज जो उन्होंने पिछले पीरियड के अंदर टिल 2014 तक जो लो इंटरेस्ट रेट रेजिम रहा था, उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा बोरो कर लिया था, स्पेशली बिटवीन 2003 to 2007 उन्होंने बहुत ज़्यादा बोरो किया था. ठीक है, पहले बैंक से बोरो किया, और जब बैंक्स ने पैसा बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया, तो उन्होंने NBFC से बोरो किया, और अब दोनों जगह से ड्राई हो गया है. तो इसीलिए इफ यू सी दी फिगर्स फॉर 2018-19, इफ यू सी ये जो 4% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, सॉरी 19-20 का जो 4% का ग्रोथ रेट हम दिखा रहे हैं, ये जो हम 4% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर, और हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन भी कम कर रहा है. तो अल्टीमेटली C+I+G+NX, यही तो ये दिस इज योर GDP गाइस. This is your C, this is your government expenditure G, this is your I, and this is your NX, this is your GDP. And if you see the problem lies here कि यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन जो है
वो फॉल कर गया। गवर्नमेंट अपने पार्ट पे इंक्रीज कर रही है कि ये कॉम्पनसेट कर दे, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी गिरे जा रही है और आपका नेट एक्सपोर्ट्स इज नॉट वेरी इनकरेजिंग। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस बेसिकली शोज कि देर इज अ वेरी वाइबिलिटी गैप आपकी इकोनॉमी में के ग्रोथ इंजन के अंदर। सो दैट इज वाई इट इज स्टॉलिंग। और अब कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ है, कोविड की सिचुएशन में ये पूरा सिस्टम फॉल कर रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसी तरीके से उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बट ओवरऑल एवरीथिंग इज फॉलिंग एंड फॉलिंग एट अ वेरी स्टीप पेस, और उसकी वजह से आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट जो 8% का आने वाला है वो समझ में आया गाइस? सर कौन बोल रहा है भाई? एक मिनट। हाँ तरह, हाँ बोलो। Sir, why there is a rise in the investment in year 2017 and 18? यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया होगा। आई थिंक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होगी। लेट मी शो इट हेयर। 17-18 की बात कर रहे हो ना तुम? 17-18 में सरकार ने क्या किया? 17-18 पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी है। दिस इज, आई नीड टू चेक कि वो क्यों इन्वेस्टमेंट है, कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेट किस लिए इंक्रीज करे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कुछ मेजर दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मेजर चेंज आया हो, बट नीड टू गेट, बट ओवरऑल यहाँ पर अच्छा एरर्स एंड ओमिशंस में आ गए। एरर्स एंड ओमिशन में कोई अकाउंटेड नहीं है इनके अंदर, उसकी वजह से यहाँ पर देखो ना, आई वुड अज्यूम कि मेजर कैपिटल फ्लोज आ रहे हैं बाहर से, कि उसकी वजह से वो होगा। दैट्स माय फर्स्ट गट फील जो यहाँ इंक्लूडेड नहीं। चलो, बट अगेन आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। एक बार आई हैव अ रीड कि क्या रीजन है इसका। आई रीड द अदर पेपर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कहीं ना कहीं मेंशन होगा। ठीक है, so this is about the growth rate, guys. You should have a comprehensive view on this. So households, if we try to summarize here कि क्या क्या हुआ है, तो households की investments जो हैं वो गिरी हैं। households की investment कहाँ से कहाँ गिरी है, let's see this and note it down. So you can just fall back to this PPT later on. Okay, if you see investments, हाउस होल्ड का यहाँ पर नहीं दे रखा है, यहाँ पर पूरा पब्लिक सेक्टर का दे रखा है, बट अगर आप हाउस होल्ड्स का देखो तो समवेयर अराउंड 15% टू 11%, तो मेजर फॉल आया है हाउस होल्ड के इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो यू कैन राइट कि 15-11% एक मेजर फॉल आया है ट्रेडिशनल सेविंग्स के, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। कॉर्पोरेट्स का भी मेजर फॉल आया है। कॉर्पोरेट्स का फॉल जो है उसका दो रीज़न है, एक आपका बैंक्स का जो क्रेडिट डिस्पर्समेंट है वो कम हो गया, एंड 2018 के बाद NBFCs का भी कम हो गया, और प्लस साथ में NPA प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी, NPA इंक्रीज हुआ था। सो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज, demonetization, GST, all of that had a huge hit on the investment rates of the corporate sector. Whereas when you talk about the public sector, it has been trying to basically filling up the gap and trying to pump up the economy. ये consistently 7-8% के बीच में है आपकी public investment. So this is what is the overall scenario. However, a major concern here is that if you see C plus I plus G plus NX of the Indian economy, आपका C भी गिरना शुरू हो गया 2018 के बाद। इन्वेस्टमेंट तो गिर ही रहा था, 2011 से ही गिर रहा है। जी किसी तरीके से उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से आपका जो रियल GDP है Y वो फॉल कर रहा है आफ्टर 2015। दिस इज द ओवरऑल इफेक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। समझ में आया गाइस एवरीवन? कोई डाउट किसी को?